All in all, what I have observed that the motivation has always been from within to join PSU, and my journey started back when I was preparing for IIT JEE, and I was very keen to go into an IIT, but that dream couldn't fulfill. हेलो गाइस, वेलकम टू चैंपियन स्पीक, जहां हम लाते हैं टॉपर्स को दैट आर फ्रॉम द गेट एनईएससी पीएसयूज एंड वेरियस अदर बैकग्राउंड्स, और उनसे जानते हैं उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, हाउ दे प्रिपेयर्ड फॉर द गेट एग्जाम, हाउ दे मैनेज्ड एवरीथिंग और किस तरह से उन्होंने गेट में सक्सेस करी और आज अपनी लाइफ में सक्सेस कर रहे हैं। सो आज हमारे साथ है ऋषभ ग्रोवर। ही इज फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी। ही secured an AIR of 191 in the GATE exam, and currently he is working in Indian Oil Panipat as an assistant manager. So आज उनसे जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में, कैसे उन्होंने गेट की प्रिपरेशन की और कैसे उनकी प्रिपरेशन, उनकी स्ट्रेटेजीज आपकी हेल्प कर सकती है। सो हेलो ऋषभ, वेलकम टू चैंपियन स्पीक। थैंक यू सर। सो ऋषभ, कैसी अब तक तुम्हारी एक ओवरऑल जर्नी रही है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द गेट प्रिपरेशन टू दिस इंडियन ऑयल, अभी जहाँ तुम करेंटली काम कर रहे हो। एक मतलब 2-3 लाइनों के अंदर इस पूरी जर्नी को बताना हो हाईलाइट के तौर पर, तो कैसी तुम्हारी जर्नी रही है अभी तक? स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग मैंने 2015 में स्टार्ट किया था। इट वाज माय बर्थडे 10th जनवरी व्हेन आई Okay. अटेंडेड फर्स्ट क्लास ऑफ गेट कोचिंग। सो आई रिमेंबर दैट इट वाज अ स्पेशल डे फॉर मी। तो एक साल आई प्रिपेयर्ड फॉर गेट एंड इन 2016 आई अपीयर्ड फॉर गेट and I secured a rank 191, and based on that rank and interview I was selected in IIT Bombay also and Indian Oil Corporation Limited. So for some time I went to IIT Bombay also. For 15 days or 20 days I was there, and after that I joined Indian Oil Corporation. Currently I am working as assistant manager production in Indian Oil Corporation Limited. The journey has been quite amazing, and I would say it has been quite comfortable working in Oil Corporation. And all in all, I would say it was the initial hard work in Gate that had paid me, and it is reaping me benefits in my entire lifetime now. सो ऋषभ, हमारे व्यूअर्स को बताओ अपने थोड़े बैकग्राउंड के बारे में, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। So basically, I am from Delhi only, Okay. and my college was in Delhi only, Indraprasth University. I was pursuing chemical engineering from University School of Chemical Technology, and after that, about my family, all my family members are in government organizations. So kind of this was kind of motivation, I would say, a slight motivation for me to get into a PSU maybe. But all in all, what I have observed that the motivation has always been from within to join PSU, and my journey started back when I was preparing for IIT JEE, and I was very keen to go into an IIT, but that dream couldn't fulfill because maybe it was some fallback on my part. So because of that, it wasn't fulfilled. So GATE exam was my second entrance exam in life. Besides all the small exams, the major second entrance exam in my life. So I wanted to give my 100% in that exam, and I wanted no stone to be left unturned. So I gave everything that I could, and as a result, I focused on my efforts and not on the result of what it has been the success mantra, I would say. And my whole philosophy of preparing for GATE exam has been effort centric, not result centric. So that was something which has gained me success in life. Still now, I believe in that philosophy, because what we have in our hand are efforts and not result. So I have always focused on efforts, and that has reaped me benefits. ग्रेट।
सो गाइस कहीं ना कहीं फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है हमारे लिए हमारी लाइफ के अंदर, और अगर पेरेंट्स अच्छे से सपोर्ट करे, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे, सराउंडिंग क्रिएट करे, बच्चे को मोटिवेट करे, तो जैसे ऋषभ ने बताया कि अगर एम्बियंस अच्छा है, सराउंडिंग अच्छी है, तो फिर सक्सेस भी मिलना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। ग्रेट। तो ऋषभ मैं जानना चाहूँगा कि आपने यूआईसीटी में केमिकल इंजीनियरिंग चूज़ की, बट कर तो कुछ भी सकते थे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा सकते थे, आईटी में भी जा सकते थे, और ज़्यादा ब्रांचेस का काफ़ी ज़्यादा क्रेज भी था उस टाइम पे। तो ऐसा क्या कि मतलब तुमने केमिकल ही ज्वाइन की यूआईसीटी में? Yes sir, initially I was inclined towards electronic engineering क्योंकि मेरा था हाँ कंप्यूटर से रिलेटेड, चिप्स से रिलेटेड, I was fascinated towards that. But हाँ, somehow I wasn't able to get that stream. But after that I went through the syllabus of chemical engineering और वो मुझे काफ़ी fascinate किया because it was more that we have studied about physics in 12th and 11th which I liked, and mathematics. So वही था कि and importantly the subjects heat transfer, mass transfer, that on the later part of my engineering I could relate them from real life examples as you taught us, and a very elaboratively you taught us those subjects, and it was great because अब क्या था from engineering it was up to a next level that you could relate it to the real things, you know, that makes learning quite easy. जैसे you used to teach us because humidification हमें पता चला how it rains, dew point, and पानी कहाँ जाता है जब गिर जाता है, where it goes, evaporation, all these are chemical processes, chemical engineering processes. So these things I could relate with what I was studying, so that makes studying quite interesting. And this thing, in this thing a mentor plays a key role because your interests and uninterests, it all depends upon how your mentor teaches you. एक सब्जेक्ट है कि हाँ मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, क्यों, मैंने पहले नहीं पढ़ा बट टीचर ने इतने अच्छे से समझाया कि मुझे सब समझ आ गया, ना आई एम इंटरेस्टेड टू फर्दर स्टडी इट. So I value my mentors a lot because I owe my success to mentors in each and every part of my life, each and every stage of my life. ग्रेट. सो गैस मेंटोर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में, बिकॉज आप जिस पाथ पे चलना चाहते हो, आपके जो गाइड है, जो मेंटोर है, वो ऑलरेडी उस पाथ पे चल चुके हैं. सो दे कैन टेल यू कि कितने शॉर्टेस्ट वे में, कितने शॉर्ट डिस्टेंस से इस पाथ को पूरा किया जा सकता है. सो ऑलवेज लिसन टू योर मेंटोर्स. ऋषभ मैं चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स को बताओ, क्योंकि इंडियन ऑयल में आप पिछले 3-4 सालों से काम कर रहे हो, सो मैं चाहूँगा स्टूडेंट्स को आप बताओ कि जो हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, हीट ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स, मास ट्रांसफ़र, आईपीसी, इन सब की हमारे इंडस्ट्री में, अगर मैं इंडियन ऑयल की बात करूँ, रिफाइनरी की बात करूँ, तो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन देखने को मिलती है? देखिए जो रिफाइनिंग प्रोसेस है, इट यूजुअली डिपेंड्स अपॉन डिस्टिलेशन. So distillation is the crux, it's the key or the heart process of the refinery. And other subjects like heat integration, which we study, and process calculations. Process calculations we widely use because time and again in each and every process there is mass balance and energy balance. So that process calculation is very important in our profile. And besides that, some absorption processes are there to strip out gases, and some stripping operations are also there. So all in all, what we are studying, somewhere we have to apply that. Not, I would say, wholesale theoretically, but on the practical basis we apply that. So अगर हमने कुछ अच्छे से तैयारी की है, चाहे गेट की या फिर अपने बीटेक में भी अपने अच्छे से पढ़ा है, इट विल हेल्प इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ इफ वी आर परस्यूइंग द सेम फील्ड. ग्रेट. तो ऋषभ मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे हम आईटी जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन करते हैं, सो कई बार ऐसा होता है कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से हमारे 3 में से लगभग 2 अच्छे होते हैं, बहुत हल्का सा एक थोड़ा वीक रह जाता है, बट फिर भी बच्चे आईटी क्रैक कर देते हैं. बिल्कुल सेम केमिकल में भी होता है. देर आर 10 टेक्निकल सब्जेक्ट्स, 2 नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स. सारे सब्जेक्ट सेम टाइम में स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते. कुछ ना कुछ मतलब सब्जेक्ट्स में हम कमी रहती है, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, और फिर भी बच्चे रैंक 1 लाते हैं. तो ये चीज़ मैं तुम्हारे थ्रू बच्चों को बताना चाहूँगा कि सब सब्जेक्ट्स में अपना 100% तो देना ज़रूरी है,
बट सब सब्जेक्ट से 100% एक्सपेक्ट करना शायद वो सही नहीं होगा। तो तुम अपनी प्रिपरेशन टाइम पे तुम बताओ कि विच सब्जेक्ट्स आर देयर जो आपको बहुत पसंद थे और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप हल्का और फुल्का को थोड़ा कम समझते थे। सर इसके आंसर के लिए सबसे पहले मैं आपको क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि जो आपने मुझे स्ट्रैटेजी बताई थी या जो फेलो मेट्स को स्ट्रैटेजी बताई थी, उसमें यू डिवाइडेड subjects into groups, and each group consisted of 2-3 subjects, and based on their weightage we prepared according to the weightage of those subjects or those groups rather, and those accordingly, suppose there are 3 major subjects and they constitute of 30 marks. 30 marks are huge, and it's 30% weightage. And you told us there are 2-3 groups which usually contain 65% of the marking. So my perspective was to make those groups as my strength and don't leave any question or try to be accurate in those groups. So वो एक strategy थी which I followed, thanks to you sir. And उसके बाद ये था कि जो मेरी बाकी ग्रुप्स थे जिनकी वेटेज कम थी, या फिर ऐसा भी था कि उन ग्रुप्स में से सारे सब्जेक्ट्स आई वाज नॉट एबल टू इक्वली प्रिपेयर, बिकॉज देयर आर सर्टेन इंक्लिनेशंस ऑल्सो कि हाँ हमें ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ये कम अच्छा लगता है. इट वॉज लाइक दैट, बट येस आई फोकस्ड ऑन दोज ग्रुप्स, and besides doing hard work, this was considered a kind of smart work also, which coaching helps you. तो वो I focused on those subjects and tried to maximize scoring in those subjects. जो weakness थी उनमें भी I targeted the easy things, yeah, which I found was easy, and that also helped in scoring good in a GATE examination. Great. So ऋषभ, प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि गेट एग्जाम को ऐसा तो है नहीं जहाँ पर आपको बहुत सारा डाटा याद करना है यूपीएससी की तरह, इट्स लाइक ए कंसेप्चुअल एग्जाम है ना. तो गेट एग्जाम के लिए आप रिवीजन को कितना ज़रूरी मानते हो एक कैंडिडेट के लिए, कि रिवीजन करना कितना ज़रूरी है? बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, एक बार वो पढ़ते हैं सो दे फील कि नाउ दे नो द सब्जेक्ट, दे आर द मास्टर्स ऑफ द सब्जेक्ट एंड दे जस्ट वांट टू डू एवरी टाइम न्यू. सो एट व्हाट रैंक यू वांट टू गिव टू रिवीजन? किस रैंक पे रखना चाहोगे रिवीजन को? सर सी ऑल इन ऑल कंसिस्टेंसी इज अ की. अच्छा, हम 10th में कुंजी यूज़ किया करते थे मतलब सुना था, यूज़ तो नहीं की. तो यहाँ गेट में तो कोई कुंजी नहीं है, बट वो कुंजी हम खुद बना सकते हैं. उसमें क्या है कि फर्स्ट वी थॉरली ब्रश अप आवर कंसेप्ट्स. द कंसेप्ट शुड बी ऑन आवर टिप्स. देन वी हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स विच आई डिड, एंड वो शॉर्ट नोट्स दे शुड लीड यू to those formulas, and after seeing those formulas you should know कि हाँ ये कहाँ से आया, because just merely cramming the formulas won't help, क्योंकि questions इतने straight forward नहीं होते गेट में कि हाँ straight away आप formula डालो and you get to the result. It's not possible. तो you should prepare notes. One should prepare notes like they should know what from where they have reached to that formula, because question can be asked from in between steps also. So वही किया, I prepared notes, I prepared short notes, and I thoroughly revised them, and not merely cramming the formulas. I used to always think of the steps from where we reach to that formula. तो वही है कि preparation, it's all about course management also, how you are managing your course. That's, I would say, a slight part of smart work besides hard work, and that was one of the aspect which helped me in sailing through. Great. So बहुत अच्छी बात कही आपने ऋषभ की, क्रैमिंग से काम नहीं चलेगा, आपको उसके पीछे की जो कॉन्सेप्ट्स है वो ग्रैस्प करने पड़ेंगे. कई बार हम सिर्फ फॉर्मूला तो पढ़ लेते हैं, बट फॉर्मूले के पीछे की जो मेन चीज़ें वो भूल जाते हैं, और गेट में कई बार क्वेश्चन उन्हीं इंटरमीडिएट स्टेप्स में से पूछे जाते हैं, तो फिर याद आता है कि यार सर ने बोला था डेरिवेशन कर लो ढंग से, और नहीं करी. ग्रेट यार. तो गाइस, जब भी आप पढ़ो तो सिर्फ यही नहीं कि फॉर्मूला याद करना है, बट उससे पीछे की जो चीज़ें हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए. एजम्पशंस अच्छे से पढ़ो, इंटरमीडिएट स्टेप्स को भी रिवाइज करते हो साथ साथ, तो आपको लगेगा कि हाँ आप सच में कुछ मीनिंगफुल पढ़ रहे हो, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऋषभ, जैसे कि आपने कॉलेज के साथ साथ गेट की प्रिपरेशन की थी, और हमारे व्यूअर्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज के साथ साथ गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जॉब के साथ साथ गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब हम कॉलेज के साथ करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट की बड़ी प्रॉब्लम आती है कि किस तरह से कॉलेज को भी मैनेज करे, प्रिपरेशन को मैनेज करे। सो आप अपने जर्नी से बताइए स्टूडेंट्स को कि आपने कैसे मैनेज किया कॉलेज के साथ साथ गेट प्रिपरेशन को। सर जैसे हमें पता है कि इंजीनियरिंग सिलेबस इट्स अ मायराइड, ठीक है, बट ये है कि जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो सेकेंड टू थर्ड ईयर में स्टार्ट हो जाते हैं एंड सेम वी आर स्टडिंग फॉर गेट ऑल्सो. So I was trying to manage both the things. I was focusing on theory also, and I was focusing on this competitive exam also. So जो subjects थे, they were in sync at that moment of time. When I joined in after the start of second year in fifth semester starting, and after third year completion was my GATE exam. So I could relate what I was preparing in GATE and what we were studying in college. Fortunately, there were some professors which used to give exemplary lectures on some of the subjects, which were quite interesting. You know, it helped me a lot to understand things. तो एक वो एक added advantage था, and then the faculty at the coaching institutes, they also helped. So all in all, I was able to sync both of the preparations. So that's the key, because what I felt during my school time and IIT JEE preparation, I wasn't able to focus on my CBSE part. I was more focusing on my preparation for entrance exam, but that that had set a drawback in my school grades and all. So that, you know, it impacted me psychologically and all that. So all in all, there should be a balance. नो, क्योंकि हमें दोनों जगह स्कोर करना है. हर PSU का एक क्राइटेरिया है, एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपका इतना वेट 65% और 60% आपका कॉलेज में भी अंडर ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए. तो वी हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड ऑल्सो, एंड साइमल्टेनियसली वी हैव टू प्रिपेयर फॉर गेट और एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम. ग्रेट. सो गाइस, जो स्टूडेंट्स अभी सेकेंड और थर्ड ईयर में हैं उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जैसे ऋषभ ने बोला कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स सेमेस्टर के अंदर है उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में आप उससे रिलेटेड ही थोड़ा डिटेल में पढ़ लोगे तो आपकी सेमेस्टर की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, गेट की भी प्रिपरेशन हो जाएगी. अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो, उन सब्जेक्ट्स को टेक्स्ट बुक में से पढ़ो, एक एक लाइन टेक्स्ट बुक की अच्छे से पढ़ो, तो भी आपकी रिवीजन जो है वो एक नंबर की मतलब बहुत अच्छी हो सकती है. और अगर आप कोचिंग भी कर रहे हो तो उन सब्जेक्ट्स की क्लासेस पहले करो जो आपके सेमेस्टर में है, तो आपको लोड फील नहीं होगा. आपको लगेगा कि आप कॉलेज वाला काम ही कर रहे हो और ये पढ़ाई आपके कॉलेज के असाइनमेंट्स में, कॉलेज के सेशनल एग्जाम्स में, माइनर एग्जाम्स में और मेजर एग्जाम्स में आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगी. सो डोंट टेक इट एज ए बर्डन. और जो फोर्थ ईयर में स्टूडेंट्स है गाइज, वो इसी गेट की प्रिपरेशन से उन्हें कैंपस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है, रिटन एग्जाम्स क्लियर हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है. तो जैसे ऋषभ ने बताया कि दोनों को मर्ज कर दो, है ना, कोइंसाइड कर दो, गेट की प्रिपरेशन को और अपने कॉलेज के एग्जाम्स को, कॉलेज की डिग्री को, उसको मर्ज कर दोगे तो दोनों में आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा. और मैनेज तो करना ही पड़ेगा अगर हमें कुछ ना कुछ अचीव करना है. तो ऋषभ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गेट की प्रिपरेशन के टाइम पे जैसे कि आपने बताया कि 6-7 महीने आपने प्रिपरेशन की थर्ड ईयर के साथ साथ, सो क्या क्या चैलेंजेस आपको लगता है कि आपने फेस किए थे उस टाइम पे, और उन चैलेंजेस को फिर आपने ओवरकम कैसे किया? मतलब क्या वो ड्राइविंग फोर्स थी, क्या वो मोटिवेशन था जिसकी हेल्प से आप उन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाए? सर हो गया अब इस बात को 4-5 साल हो चुके हैं, तो वी वर नॉट दैट प्रिविलेज टू हैव ऑनलाइन क्लासेस. अभी ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी प्रेवलेंट हैं. तो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि मेरा ट्रैवलिंग में आई वाज लूजिंग अ लॉट ऑफ टाइम. आई वाज नियरली लूजिंग 2 आवर्स इन ट्रैवलिंग. तो मैं वीकेंड्स पे ही आता था, बट स्टिल आई वाज लूजिंग 2 आवर्स अ डे. एंड बिसाइड्स दैट आफ्टर यू रेस्ट एंड ऑल, तो I wasn't able to manage time initially well. तो उसका whenever I used to get time, I used to stay at my coaching, near to my coaching place also. I used to tend to tie up with my friends, and वहीं पे I used to. And for last 1 month before examination, I was away from my home, because my home is in Delhi and the coaching was only in Delhi. But to just save those 2 hours, because
I found that those 2 hours were very crucial that I was wasting. So I took a place near to my coaching. So that was something that, yeah, I think, yeah, I did correctly, and what I faced the challenge the most. So baki rest everything was good. The faculty was great. You being the mentor, you have guided us very well. So the major challenge was traveling. सो गाइस आप बहुत लकी हो इस ऑनलाइन के ज़माने में कि एटलीस्ट ट्रैवलिंग वाला जो चैलेंज आपके साथ नहीं है। तो जो भी रिसोर्सेस आपके अब इंक्रीज हुआ है विद द टाइम, उन रिसोर्सेस को आपको यूटिलाइज करना चाहिए और मेक द मोस्ट ऑफ इट। ऋषभ, बहुत से बच्चों को ना अपना अपना एक सक्सेस मंत्र होता है। लाइक कई स्टूडेंट्स मानते हैं कि बार बार रिवाइज करना उनके लिए एक सक्सेस मंत्र है। कुछ स्टूडेंट्स मानते हैं कि उन्होंने टेस्ट सीरीज अच्छे से दी तो वो उन्हें कहीं ना कहीं हेल्प करी, या हर एक का अपना अपना एक लाइफ में सक्सेस मंत्र होता है कि जिसको फॉलो करके वो सक्सेस पा पाते हैं। सो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ का सक्सेस मंत्र क्या है, कि गेट में भी आपको सक्सेस मिल रही है, उससे बाद भी और उससे पहले भी, जब भी आपको लाइफ में सक्सेस मिली किसी फील्ड में, किस मंत्र के ऊपर आपने मेनली काम किया? सर जैसे मैंने पहले बताया, आई ऑलवेज फोकस ऑन एफर्ट्स, क्योंकि वही चीज़ है जो हमारे हाथ में है. I only focus on efforts, and there was one very good teaching which you told us. If we assume that there is only one side of the coin, that positive mindset, that psychology, कि एक ही साइड है, that is positive, मतलब आउटकम पॉजिटिव ही आना है, तो we get a very boost up or motivation from inside. It's all psychological when we are doing and if we are playing any sports. Let's take an example, if we are going for any adventure or something, it's all in head, it's all in mind. Or same is the case with competitive exams. If you think your fight is within, we don't have to see how, okay, 1 lakh people are appearing for exam. You see your fight is from within. You have to improve yourself, you have to fight from yourself. Then we tend to stretch our comfort zone, or we tend to go that extra mile. So that has been my motivation all in all, कि हाँ खुद को ही I keep on boosting, because when you get motivated from external things, the motivation is very temporary. जब एक अंदर से आग होती है ना, it keeps on burning and it keeps on taking you forward. So that's what I think. I focus mainly on my efforts, and I feel motivated from within, whether I'm doing anything in my life. And basically I don't have major goals in life. I just tend to have small goals, and I keep on achieving and celebrating them. So the same was the case when I was preparing for GATE. मेरे को था कि I have to give my 100%. I don't want to think about the result, whether I would be able to crack it or not. So I gave my 100%. I obviously the mistakes which I committed during my before undergraduation, I tried to avoid them, and as a result, the GATE went well for me. ग्रेट. सो गाइस, जैसा कि हम पढ़ते हैं आईपीसी के अंदर कि एक होता है मैनिपुलेटेड वेरिएबल जिसकी वैल्यूज को हम एडजस्ट कर सकते हैं, एक होता है डिस्टर्बेंस वेरिएबल जिसकी वैल्यू पे हमारा कंट्रोल नहीं है. और अगर हम अपने मैनिपुलेटेड पे ध्यान दें तो सिस्टम का स्टडी स्टेट तो हमेशा बना ही रहेगा. ठीक है, तो अपना स्टडी स्टेट अगर बनाए रखना है तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है उस पर हमें फोकस करना है, और जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है उसको उसके इम्पैक्ट को कम से कम रखने की हमें ट्राई करनी है खुद से. और ग्रेट यार ऋषभ, बहुत बढ़िया. I want to add one more thing, sir, कि mindset is the key. मतलब अगर आप सोच लो कि आप कर लोगे तो आप कर लोगे, because we only human beings are there which are making huge technological developments. वो भी इंसान, उनके पास भी 24 घंटे, but they are doing things because they have belief कि they will do. So can anybody. अगर हम सोच लेके करेंगे तो कर जाएंगे, बट अगर हम इधर उधर के इंट्रिकेसीज में फंस जाएंगे, हाँ ये ऐसा हो रहा है, ये उसने इतने मार्क्स ले आया, ये हम अपने आप को ही शैकल कर रहे हैं उसमें. सो वी शुड फोकस ऑन आवर सेल्फ, आवर ग्रोथ, आवर डेवलपमेंट, एंड दैट इज़ व्हाट विल हेल्प यू. वो कहते हैं ना, विनर्स फोकस ऑन विनिंग एंड लूजर्स फोकस ऑन विनर्स. तो इफ़ यू वांट टू बी अ विनर, then you should focus on yourself or focus on winning. So that's what I think is a key.
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते भी है कि सर हमने लेट स्टार्ट किया है, गेट होगा क्या? हमने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, गेट होगा क्या? हमने टेस्ट सीरीज ढंग से नहीं दी, गेट होगा क्या? वो हम एक सब्जेक्ट 10 घंटे में रिवाइज कर पा रहे हैं, हमसे होगा? बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ऋषभ ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया इसका कि आपको खुद पे फोकस करना है। आपने जब भी स्टार्ट किया, आपने कभी भी रिवाइज किया, कुछ भी किया, आप उस चीज़ को ट्रैक करो। मान लो एक सब्जेक्ट है मास ट्रांसफर, आपने रिवाइज किया 10 आवर्स में, ट्रैक करो उसको कि 10 आवर्स लगे। नेक्स्ट टाइम आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 10 आवर्स से कम में रिवाइज करना है, 9 आवर्स में करना है, नेक्स्ट टाइम 8 आवर्स में करना है। अब आप ये सोच के टेंशन में रहोगे कि सामने वाला 4 घंटे में कर रहा है, तो फिर उससे अपना ही नुकसान है, आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी। बट अगर आप खुद के टारगेट्स बनाओगे और उसे अचीव करोगे, यू विल गेट मोटिवेटेड एंड यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। तो जैसा ऋषभ ने बताया कि बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। मैंने भी पिछले 10 साल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनकी शायद प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं थी, बट उनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल था, एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू गेट 2 डिजिट और वेरी गुड रैंक। सो जस्ट बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस इज द की। अगर वो आपके अंदर है तो आप भी कर सकते हो। सो ऋषभ, मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि एक मेंटोर का लाइफ में या सक्सेस में क्या रोल होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ ए मेंटर इन द लाइफ? सर, मेंटोर इज अ लाइट, मतलब इट गाइड्स योर पाथ. अगर इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ गेट में 50 सॉरी बीटेक में 50 सब्जेक्ट्स हैं, एंड if when you join coaching, when you get in touch of a mentor or teachers, वो 50 subject that cut down to 10 or 12, those are major subjects. तो वो जो आपका पूरा हार्ड वर्क है वो ज़ीरो इन करने का, वो एक कम हो जाता है, ठीक है. एंड देन मेंटोर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन सा आपका इंटरेस्ट और अनइंटरेस्ट है. तो अब सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ अपना, कि मैं जब कॉलेज में था, मेरे जो हीट ट्रांसफ़र के टीचर थे, वो इतना इंटरेस्ट नहीं जगा पाए थे किसी भी स्टूडेंट में. तो उसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र वाज माय सबड्यूड सब्जेक्ट, मतलब आई वाजंट इंटरेस्टेड इन लर्निंग. बट आफ्टर आई जॉइंड कोचिंग, आई मेट सम ऑफ द फैकल्टीज हु वर वेरी एक्सपीरियंस्ड, एंड उन्होंने जो पढ़ाया, जो हमें समझाया, and it was amazing, and that resulted that I attempted all the questions in gate of heat transfer and scored 100% in that. So a mentor is a guiding light in every aspect. This was just an example of gate. हम कोई भी नई चीज़ सीखते हैं, अब हमारे रियल लाइफ में टीचर्स नहीं होते, वो हमें खुद बनाने पड़ते हैं. लाइक हम ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में कलीग्स हैं, mentor can be your senior because he has experience, he knows. So there is no guided or definite mentor in real life, but you have to choose one. They can be elder to you, they can be smaller to you. It's based upon their experience, their knowledge, because what I feel, experience is the best teacher. Knowledge, after you gain knowledge, your experience teaches you a lot. So if you tend to gain something good from others' experience, it's the best. ज़रूरी नहीं है कि मैं ठोकर खा के ही सीखना है. अगर एक मेंटोर को एक्सपीरियंस है, वो हर कोई अपने एक्सपीरियंस से ही यहाँ पे शेयर करता है, कोई भी. तो अगर इफ़ वी शुड हैव फर्स्टली ट्रस्ट इन आवर मेंटर. काफ़ी मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, दे टेंड टू टेक देयर मेंटर्स वेरी लाइटली, which is not, I would say, a very good thing to do, because obviously mentor has greater experience than you or anybody who is preparing. So you should follow your mentor, because they are what they are in the position, and that's they are for a reason. They are there for a reason, not because they have much more experience and knowledge than you. So a mentor is a guiding light. That's very important. तो मतलब आप बच्चों को बोलना चाहोगे कि मैं जो भी बोलता हूँ उन्हें करने के लिए उन्हें करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर. मतलब there is no doubt, because you have such a great experience. You have been in this line for quite a long time, and we are your students. We are sitting here, and the upcoming students should also know that yes, they are in the right hands. So they should follow. तो गाय सब पढ़ लेना, है ना? ऋषभ बोल रहा है और बाकी जितने भी टॉपर्स है वो सब बोल रहे हैं कि फॉलो कर लो तो कर लो.
चुपचाप बिना दिमाग लगाए, ठीक है, जस्ट फॉलो वट एवर द फैकल्टी इज सेइंग। सो ऋषभ, मैं जानना चाहूंगा कि तुम्हारी गेट के प्रिपरेशन के रिलेटेड क्या स्ट्रेटेजी थी जो तुमने फॉलो की, और अब बच्चों को भी वही फॉलो करनी चाहिए जिससे उन्हें भी सक्सेस मिले। Sir, yes, पहले I tried to complete my syllabus as early as possible and simultaneously I was making short notes जो मैंने पहले रेफ़र किया। तो it helped me to be in touch with each and every subject। तो शॉर्ट नोट्स को मैं थॉरली रिवाइज करता था क्योंकि ऐसा होता है कि व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 1 or 2 सब्जेक्ट्स, तो उनकी सपोज क्लासेस हम ले रहे हैं, वो चल रही हैं, तो वी आर मोर फोकस्ड ऑन दो सब्जेक्ट्स। बट मीनवाइल लोग कहते हैं ना, आगे भाग पीछे छोड़, वो वाला हिसाब बन जाता है। तो वी डोंट हैव टू डू दैट। तो उसके लिए आई यूज़ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स एज आई टोल्ड, एंड आई यूज़ टू रिवाइज दो शॉर्ट नोट्स, एंड वेन एवर आई फेल्ट कि हाँ कुछ मिस हो रहा है, आई यूज़ टू रेफर टू द कंसेप्ट। दैट इज़ very important because सिर्फ वही, I told you, cramming is not will not help. So revision in a smarter way, I would say. And before exam, when I was through with my syllabus, and revision was continuous till the last date, I used to revise. And before 2 months before exam, I started giving mock tests. So mock tests is very, it tells you where you stand. आपने तैयारी कर ली, बट यू हैव टू एनालाइज और असेस योर सेल्फ कि हाँ, एम आई एबल टू स्कोर, एम आई एबल टू डिलीवर व्हाट आई हैव स्टडीड, बिकॉज दैट इज़ द की। बिकॉज आप दुनिया जहान का पढ़ लो, इफ यू नॉट एबल टू परफॉर्म इन एग्जाम, देयर इज नो पॉइंट। द मॉक टेस्ट इज दैट वार्म अप, दैट वार्म अप इज नीडेड इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ऐसा है कि कहते हैं ना कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वी आर एट आर 100%, बट व्हेन वी आर प्लेइंग अ मैच और व्हेन वी आर एक्चुअली गिविंग एन एग्जाम, द एफिशिएंसी डिक्रीजेस। तो इट शुड बी 200%, यू शुड नॉट लीव एनीथिंग कि हाँ ये बाद में देख लेंगे या कुछ कर लेंगे। सो दैट इफ़ यू आर फोकस्ड एंड यू आर प्रिपेयरिंग, यू शुड बी टॉप नॉच के हाँ ये करना है, सो दैट आप जब एग्ज़ाम दे रहे हैं, the scenario won't be the same। ठीक है, मॉक टेस्ट भी हम देते हैं, somewhere there is a slight comfort zone, not we should give mock test as we are giving the original exam। so mock test देना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद एग्ज़ाम से एक दिन पहले I stopped preparing, और I relaxed, I enjoyed watching TV, which I didn't used to। So I watched TV that day and I relaxed and took proper sleep before exam. That's a must, because when you are rested, you tend to perform better। Great. So guys, ये चीज़ को ध्यान रखना जो कि ऋषभ ने बताया है कि सिलेबस पूरा करना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी, रिवाइज करना है, PYQs अच्छे से करने हैं और मॉक टेस्ट देते रहना है। अब मॉक टेस्ट को जैसे ऋषभ ने बताया, देने का एक तरीका है ना, ऐसा नहीं कि कंफर्ट जोन में बैठ के, सर्दियों का टाइम है, रजाई ओढ़ रखी है, हीटर ऑन है, बिल्कुल प्रॉपर वे से दे रहे, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई फायदा नहीं है मॉक टेस्ट देने का। ठीक है, प्रॉपर वे से दो। गेट का एग्जाम जनरली 9:30 से 12:30 होता है। सो आप भी ट्राई करो कि जब भी कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो फुल लेंथ का, तो 9:30 से 12:30 में दो, है ना। जनरली चेयर्स पे बैठ के हम एग्जाम देते हैं गेट का, आप भी चेयर पे बैठ के एग्जाम दो, है ना। वर्चुअल कैलकुलेटर का हम यूज़ करते हैं गेट में ऑनलाइन, आप भी वर्चुअल का यूज़ करो, फिजिकल का यूज़ ना करो। गेट एग्जाम में हमारे पास आसपास कोई बुक्स या स्टडी मटेरियल नहीं होता है, तो आप भी ये मेक श्योर करो कि आप कोई भी बुक या स्टडी मटेरियल की रेफरेंस मत लो, और 3 घंटे के अंदर प्रॉपर वे से पूरा अपने एफर्ट लगा के ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको लाने हैं जैसे गेट में लेकर आते हो। सो वो एम्बियंस क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है उस 3 घंटे में, तभी आपकी एक्चुअल 3 घंटे की प्रैक्टिस हो पाएगी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात बोली ऋषभ ने कि मॉक टेस्ट को एक प्रॉपर वे से दोगे तो आपके गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन भी उसी तरह से काफ़ी अच्छी हो पाएगी। ग्रेट ऋषभ। ओके ऋषभ, मैं जानना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि केमिकल में ये सोचा जाता है कि अगर आपका सिंगल डिजिट या डबल डिजिट रैंक है तब तो आपके पास चांस है PSU में जाने का, बट जब इससे ज़्यादा रैंक आती है तो एक मिसकॉन्सेप्शन है बच्चों के बीच में कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो आपके थ्रू, बिकॉज आपकी भी
3 डिजिट रैंक थी, है ना। आपके थ्रू बताना चाहूँगा बच्चों को मैं कि बहुत सारे PSUs है जो कि 100 रैंक से ऊपर भी रिक्रूट करते हैं, है ना। जैसे कि आप अभी इंडियन ऑयल में हो, तो वो चीज़ क्या थी, कैसे आप इंडियन ऑयल में गए ट्रिपल डिजिट रैंक होने के बाद, या जब आपकी ट्रिपल डिजिट रैंक आई तो क्या आपको बिलीव था कि आपको कोई PSU मिलेगा? तो उसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में बताइए। Sir, actually, this is the whole recruitment process or the market scenario. I would say it's very dynamic. क्योंकि it all depends कि कितने लोग retire हो रहे हैं, whether are we into recession और अभी मतलब क्या expansion कोई हो रहा है कंपनी में या नहीं हो रहा. तो all these depends upon the external factors. So I would say the people preparing for 2015, 16 and 17, they have been very fortunate because there was some mass recruitment that happened in all the PSUs. So all this is very dynamic. But while preparing for the GATE exam, the purpose should be clear. Why you are doing it? PSUs are there which take till 200, 300 rank. Right now also they are there. But you should be happy doing those going, because not each and every PSU is a Maharatna. So you should make up your mind. Okay, I want to I will prefer MTech. So MTech में we have chances in IIT Bombay. They also take the interview is very important in IIT Bombay. If your gate rank is slightly lower but your interview or your concepts understanding is good, they are happy to take. So the purpose of giving any exam should be clear कि हाँ इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, and there should be a contingency plan to that कि अच्छा अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा. So we should be geared up with both the things कि हाँ करना क्या है and a backup plan. अगर ये नहीं हुआ तो क्या करूँगा. Whether I will reappear for GATE, if I didn't get a PSU, I'll reappear for GATE or I'll go for MTech in a good institution if I got. So we should be prepared कि हाँ, and the motive should be clear. Opportunities are there and will be there because we are an emerging economy. So opportunities will never cease. ग्रेट. सो गाइस, जैसे कि ऋषभ ने बताया कि हार नहीं मानना है. अगर आपने अपना एफर्ट दिया, आपका रैंक आया है, तो ऐसा मत सोचो कि आपकी जॉब नहीं लगेगी. जॉब लगेगी. देयर आर मैनी PSUs जो कि हायर करते हैं. अभी RCF की मैं बात करूँ तो लास्ट टाइम उन्होंने मोर देन 50 केमिकल इंजीनियर्स को रिक्रूट किया था. बार्क हर साल 20-30 केमिकल इंजीनियर्स रिक्रूट करता है. इंडियन ऑयल भी कभी ज़्यादा कभी कम तो करती है. लाइक 2020 में सबसे कम वैकेंसी थी, उस टाइम भी 45 इंजीनियर्स तो रिक्रूट किए ही थे. अभी 21 से देखी जाए तो वैकेंसीज डबल है, 90 के आसपास वैकेंसी है. सो वैकेंसीज आर ऑलवेज देयर और 100 से लेके 200 के बीच में हर साल इंजीनियर्स प्लेस होते ही होते हैं. ठीक है, तो आपको अपना बेस्ट देना है. आपका जो भी रैंक है उस रैंक पे आप फाइट करते रहो, ट्राई करते रहो और मिलेगा तो ज़रूर आपको, है ना. बट अगेन यार, बेटर रैंक की ट्राई करें तो वाई नॉट. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ट्रिपल डिजिट रैंक इज नथिंग. ट्रिपल डिजिट रैंक पे भी काफ़ी कुछ मिल सकता है अगर आप MTech भी ज्वाइन करते हो और MTech ढंग से करते हो. सो आप एक अच्छी खासी प्राइवेट कंपनी में अच्छे खासे पैकेज पे काम कर सकते हो. आप अपने MTech को के बाद PhD में जा सकते हो, वहाँ पे अच्छा खासा स्टाइपेंड आपको मिल सकता है. आप रिसर्च में जा सकते हो, आप बाहर जा सकते हो रिसर्च करने के लिए. तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है. सो इट्स नॉट दैट कि डबल डिजिट नहीं आया तो फ्यूचर ही नहीं है ना. इट्स यू हु हैव टू मेक योर फ्यूचर ऑन योर ओन बाय द मेकिंग द यूज ऑफ योर रैंक. ठीक है, सो ग्रेट ऋषभ. अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डू यू रीड एनी बुक्स? कोई बुक्स आप पढ़ते हो, और पढ़ते हो तो कौन सी बुक्स आपको पसंद है जनरली? Sir, yes, I not exactly so many books I read, but I tend to read. I read news or some journals or some article that comes. But yeah, one of my favorite book is Life's Amazing Secret by Gaur Gopal Das ji, and it helps. That book helped me a lot to strike a balance in professional and my personal life, and that also is a very important aspect. We are the personal growth is a key. You are earning money, if you don't have good health there is no point. So these self-help books have helped me a lot, and I would say
inclination is towards reading, not any specific fictional book or, but yeah, I tend to read and get in touch with latest happenings around the world or some developments and all. So that's, but that one book, it has changed my perception. तो गाइस ये जो बुक रीडिंग है या कोई भी आपकी और हैबिट है, ऑल दिस हैबिट्स एक्ट एज ए स्ट्रेस बस्टर। ठीक है, तो जो भी आपकी हैबिट है या कोई पैशन है तो उसको ज़रूर फॉलो करो प्रिपरेशन के साथ साथ। वेन एवर यू गेट सेचुरेटेड यू कैन डू दिस एक्टिविटीज़ टू गेट स्ट्रेस रिलीफ। ग्रेट। ऋषभ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गेट का एग्ज़ाम 3 घंटे का एग्ज़ाम है, अगेन 3 घंटे बैठना और पूरी फोकस के साथ एग्ज़ाम देना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपके गेट एग्जाम देते टाइम क्या स्ट्रेटेजी थी? 3 घंटे आपने कैसे मैनेज किए और कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया? Sir, yes, it was a key strategy, I would say. I went through the whole exam in first 10 minutes. I just scrutinized कि ठीक है, इस सब्जेक्ट का ये नंबर ऑफ क्वेश्चन, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम मास ट्रांसफर, क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्रॉम हीट ट्रांसफर. I kept on writing. I wrote heat transfer. I kept on writing question number this, then mass transfer question number this. How it helped me when I am going for a subject, I know this is my strength. I used to rate those subjects according to my strength. This is my strength. I would do it at the earliest because it gives you more and more confidence as you keep on solving the questions. तो मेरा हीट ट्रांसफर, इट वॉज माई स्ट्रेंथ. आई स्टार्टेड विद दैट. आई रोट ऑल दी numbers which were related to that subject, and simultaneously I prepared the whole list of subjects. It took me around 10 minutes, but it was worth. So I started with the heat transfer. Unfortunately, it was the toughest section in 2016, I would say. But being a strength, I was able to achieve 100% marks in that subject. But it took me a while to solve the whole subject. But उससे हुआ क्या कि I was in the flow of that subject. मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ. मैं एक क्वेश्चन हीट ट्रांसफर का था, दूसरा भी हीट ट्रांसफर का ही था, तो आई कुड रिलेट द कंसेप्ट ईजीली. सो दैट वाज अ स्ट्रैटेजी. And then I went for mass transfer, then mathematics, process dynamics and control. But I just said that when you are giving the original exam, the efficiency is nearly 20%. So 1.5 hours were passed, and I had only solved 25 questions. So I recalled my IIT JEE exam. अरे यार, ये तो repeat हो रहा है. So then I switched straight away to general aptitude because the questions are comparatively very easy in general aptitude. तो वो 10 question I was able to solve in 10 minutes, and from 25 to 35 in 1 hour 40 minutes. It was a leap, I would say. Big leap. तो उसके बाद I gained confidence and I ended up attempting 55 questions out of 65, which was enough, I would say. But yeah, if anybody has more preparation, you should attempt for 100%. But don't give flukes, because there is negative marking. The strategy should not be to maximize or to quantize. It should be to focus on quality and accuracy. So if I am attempting 55 questions, I guess 43 or 44 were correct, around that. So there should be a management of things. Straight away जाके फट्टे नहीं मारने कि हाँ ये भी कर लो, ये भी कर लो. Because अगर हम स्ट्रैटेजी से चलते हैं तो इट हेल्प्स अ लॉट. ग्रेट. सो जैसे कि ऋषभ ने अभी एक स्ट्रेटेजी बताई है, इसी तरह 2-3 स्ट्रेटेजीज है जनरली जो मैं अपने बच्चों को हर साल बताता हूँ. सो इस बार भी मैं आपको बताऊंगा और अगली बार भी बताऊंगा. आपको क्या करना है कि जब मॉक टेस्ट हो गए, उन मॉक टेस्ट में उन स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करना है, हर स्ट्रेटेजी को, और देखना है कि कौन सी स्ट्रेटेजी जो आपके लिए बेस्ट है, किस स्ट्रेटेजी में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो या किस स्ट्रेटेजी में आपको ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं. सो स्ट्रेटेजी तीनों लगाने के बाद आप चूज करो कि विच इज़ द बेस्ट फॉर यू एंड अप्लाई द सेम इन द गेट एग्जामिनेशन. और जब आप गेट एग्जामिनेशन एक स्ट्रेटेजी से दोगे ना, तो दैट विल बिकम ए गेम फॉर यू, इट विल बी ए फन फॉर यू. ग्रेट. सो ऋषभ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि
कोई ऐसा कोट जो आपको अपनी लाइफ में पसंद है और जिसे आप फॉलो भी करते हो? देखिए, एक भगवत गीता का बहुत फेमस कोट है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा संगोत्स कर्मणि. So, as I told you, I focus on efforts and don't care about results. The same this shlok explains, and this is what I follow in life. I only focus on my efforts because those only things are what we can control. We cannot control the outcome, we cannot control the external factors unless those are in our hands. But what we can control is on our efforts. So that shlok that has been near to my heart, and I've rigorously follow that. So guys, change in output equals to KP times the change in input. Exactly. Change in output is not in your hand, but change in input is in your hand. और अगर आप अपने इनपुट पे, अपने एफर्ट्स पे काम करते हो तो ईश्वर आपका केपी भी इंक्रीज कर ही देता है. ठीक है, तो रिजल्ट तो यार क्यों नहीं आएगा फिर. ग्रेट. तो ऋषभ, मैं जानना चाहूँगा करेंटली आप रिफाइनरी में, इंडियन ऑयल पानीपत में कहाँ प्लेस हो, किस यूनिट में प्लेस हो, और इस यूनिट के अंदर क्या आपकी मेन प्रोफाइल है, क्या आप काम करते हो, तो उस चीज़ को थोड़ा डिटेल में बताइए. Sir, I'm placed in petrochemical complex in Panipat, and basically looking after monoethylene glycol plant. And my profile is of production. I'm assistant manager in production. So we ensure the smooth functioning of plant and any kind of troubleshooting if any emergency or abnormality arises. So एक process engineer और production engineer से I started, and I'm looking after the whole process of MEG production in Panipat. So day to day working जो होती है, optimization कैसे कर सकते हैं हम plant का, how can we save utilities, and any maintenance activities are there if, and basically we are looking after the whole plant like it's our child kind of thing. Because, and importantly, focus a lot on safety, because there are a lot of people that are working under us, those who are working directly on the field, and safety is the foremost aspect. Dealing in hydrocarbons, it's a kind of a hazardous industry, as we all know. So safety aspect should be not compromised with. So वही है कि all in all, smooth functioning of plant is what we ensure. तो गाइस, जितने भी प्रोडक्ट्स आप केमिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ते हो, पेट्रोकेमिकल में, पॉलीमर्स में, तो ये जब इंडस्ट्री में आप अपने सामने देखते हो और इन यूनिट्स को संभालते हो, सो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, है ना. एक अमेजिंग फीलिंग है वो भी, उन सारी चीज़ों को होते हुए देखना. सो ग्रेट ऋषभ, बहुत अमेजिंग जर्नी रही आपकी, बहुत अमेजिंग इंटरव्यू था. काफ़ी लाइफ के फंडे ऐसे हैं जो आपने अपनी लाइफ में फॉलो किए, और स्टूडेंट्स को भी उनकी प्रिपरेशन जर्नी में बहुत काम आएंगे. चाहे वो शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट हो, कॉलेज के साथ साथ टाइम मैनेज करने की हैबिट हो, गेट के एग्ज़ाम में 3 घंटे कैसे दे वो वाली चीज़ हो, मॉक टेस्ट को कैसे देना चाहिए वो हैबिट हो. बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को उनकी लाइफ में हेल्प करेगी प्रिपरेशन के टाइम पे. आई वॉन्ट टू नो कि एनी वर्ड ऑफ विजडम दैट यू हैव फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट्स ऑफ द गेट. देखिए, कोई भी चीज़ करते हैं हम लाइफ में तो कंसिस्टेंसी इज़ द की. यू शुड नॉट स्टॉप वंस यू आर इट्स एक्चुअली डन. काफ़ी मैंने देखा है लोग स्टार्ट करते हैं बट हाफ वे थ्रू दे गिव अप. दैट्स आई वुड से कि या तो करो ही मत. इफ़ यू हैव स्टार्टेड, यू हैव गॉट इनटू समथिंग, देन यू शुड फिनिश इट अप प्रॉपरली. दूसरी, एज आई मेंशन, कोर्स मैनेजमेंट, नोट्स. Third, I would say, being a student, we are sometimes over pressurized or overburdened. So we should have one such activity, any physical activity or maybe our hobby or interest that we should keep on following, because we need to reset our mind time and again. हम हर समय cluttered नहीं रह सकते. We should refresh ourselves. तो ऐसा नहीं है कि we are totally into that activity, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. There should be a balance कि हाँ, we should give 1 hour daily to that activity or maybe that physical activity. So that's very important. And yes, the strategy, there should be a strategy. That's it, I would say, because everybody knows himself very well कि हाँ, what strategy will suit him or her,
and how he or she should approach. There are plenty of approaches that we have. The one should be comfortable. No, हमें इतनी मेहनत कर लेनी चाहिए कि वो चीज़ हमारी कंफर्ट जोन बन जाए. मतलब वी शुड, हमारा कंफर्ट जोन एक नया कंफर्ट जोन बन जाए कि हम, जैसे आपने बताया, इंटरेस्ट, वो गेट ही इंटरेस्ट बन जाए, हमारे प्रिपरेशन इंटरेस्ट बन जाए. तो वो एक फैक्टर जब आ जाता है तो ऑटो पायलट मोड में चलती हैं चीज़ें. फिर बहुत ज़्यादा मेहनत फिर ज़रूरत नहीं है. अगर हम इनिशियल पूरा उसको अच्छे से करें, मेंटर्स की बात सुने, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. ग्रेट. सो गाइस, जैसे ऋषभ ने कहा कि एक चीज़ को अगर शुरू कर दिया तो उसे फिनिश लाइन तक ज़रूर लेके जाना है. सो ये बात उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि अभी ड्रॉप कर चुके हैं, जिन्होंने 1 या 2 बार गेट का एग्ज़ाम दिया है, अच्छा रैंक नहीं आया और दोबारा ट्राई कर रहे हैं. तो गाइस, आपको लगे रहना होगा. कई बार सक्सेस पहली बार में मिलती है, तो कई बार दूसरी बार में, तो कई बार तीसरी बार में. बट अगर आप लगे रहोगे, किसी काम को शुरू किया है, उसको फिनिश करोगे, तो सक्सेस ज़रूर आपके पास आएगी. सो थैंक यू ऋषभ फॉर योर टाइम. व्यूअर्स की तरफ से भी बहुत बहुत थैंक यू. काफ़ी कुछ उन्हें सीखने को मिला आज के सेशन से. एंड तुमने टाइम दिया और काफ़ी अपनी जर्नी के बारे में बताया. तो व्यूअर्स को आई होप कि बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलने वाला है. थैंक्स फॉर हैविंग मी सर. थैंक यू.